Okay, sorry for starting the recording late, but let me narrate what was the original question. Original question was, what can we do and how can we learn to install Kubernetes on manual Kubernetes installation on different EC2 instances? What I'm trying to explain right now is ये इंडस्ट्री में यूजुअली नहीं होता है. इंडस्ट्री में यूजुअली मैनुअली क्यूबरनेटिस इंस्टॉलेशन नहीं करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं मैनेज्ड क्यूबरनेटिस, राइट, where all these things can be outsourced to a cloud thing. या तो क्लाउड की मैनेज क्यूबरनेट सर्विस यूज करते हैं या फिर ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में जो कि ऑन प्रमाइज डिप्लॉयमेंट्स क्यूबरनेट्स का प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो that doesn't mean you should not learn it, because when you try to do something like this, it gives you a lot of learning. आपको थोड़ा EC2 का, थोड़ा Linux का, थोड़ा virtual machine, थोड़ा configuration, थोड़ा Kubernetes, सब थोड़ा थोड़ा सीखने को मिलेगा उसमें. But that is very time consuming. So if you get yourself involved in installing Kubernetes on multiple EC2 machines, वहाँ आप Kubernetes का control plane install कर रहे हो और worker nodes install डाल रहे हो, बहुत configuration involved है वहाँ पर, or there can many things which can go wrong, and then you can get so bogged down into that, then you will lose focus on other things. So that means the straight answer is you can still try to do it, Vinay. It's not that's something I will try to assist you if you can. If you get into trouble, maybe I can try help you out. I am not committing on that, but I can still, I have done that before. I'm telling you it's complicated, right? But if let's say you get involved somewhere, I can try helping you, but I will not cover it as a part of our course content. So we will always rely on managed Kubernetes. We will not work on doing a manual installation of Kubernetes or different machines. That's really out of the scope. But having said that, as I said, ये यूज बहुत सारे DevOps टीम इस तरह से भी काम करते हैं जहाँ पे वो installations वगैरह करते हैं. So it's a good learning. It's not that it doesn't come under the purview of the whole DevOps space. It is the very valid topic. How will you install Kubernetes on your, if I give you 5 machines, how will you install Kubernetes on those machines and make it up and running? It's a valid use case, but I will not cover it because it's too complicated for you guys at the moment. And considering the time we have, yeah, there's no point of going into this. Okay, Vinay, did I answer? Yes, sir. Okay. What else? So people who are basic, right? People who has given me comments on the feedback form about many things. So this session is designed for you guys. So next 45 minutes, 1 hour, whatever it takes, it's your chance to ask me where you are stuck. What can I do to help you? If you are working on, let's say you want me to show certain things, I will show you that. What it is which is blocking you from progressing further, you can talk about that. You can ask that. Anything? Speak up, guys, speak up. Okay, so whenever you muster the courage to speak up, please do speak up. As I said, no one is here to judge you. I will not, certainly will not judge you. If you think कुछ question है जो पूछ सकते हो, मैं आपकी help कर सकता हूँ, I will help you out without passing any judgment. ठीक है? So if you get this, and I will say, muster that courage to come forward and say yes or no, whatever you want to speak on. Right, but please do that. Please come forward. So we have, like, today we have 2-hour session. Whenever you feel like you want to speak, just unmute and speak. If you don't want to speak, fine, put that in the chat, but do come up. Okay, speak up. Fine. So I see no comments, I see no questions. I'm not sure what to cover. Yeah, Hello, go on, sir. go on. Yes. Sir, I have a doubt. Please you repeat Terraform and SSH. Terraform and SSH. ठीक है? Yes, we can do that. Okay, so let's spend some time in Terraform and SSH, guys. Okay, fine. So for understanding Terraform or understanding SSH, we need to understand cloud first, right? What is the reason we use cloud for?
right? So for example, AWS cloud, which we use, there are different cloud players in the market, what they provide. Okay, can anyone tell me what is the fundamental thing cloud provides? What is the fundamental unit of, Infrastructure. sorry, what? Infrastructure. Correct, infrastructure. That means whatever software you run, they run on an infrastructure, right? Infrastructure means what? Infrastructure means computer, right? It's a fancy word to say simple computer. आपके पास जो लैपटॉप है वो क्या है? It's a computer. A computer has two things, primarily two most important things, CPU and RAM, right? So this CPU and RAM, when you put that all that together, and of course there are different components, it becomes a machine which can, on top of which we can install an operating system, and that as a whole is your infrastructure, right? So उसका एक साइज होता है, CPU 2 CPU 3 CPU 4 CPU या RAM 4 GB रैम 5 GB रैम 10 GB रैम. हम लोग जो पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं वो तो नॉर्मल रैम, उसमें नॉर्मल रैम CPU वगैरह होता है. सो ये प्रॉब्लम 2000s में आई थी लोगों के पास, क्योंकि सबको अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ रहे थे. एंड दिस कॉन्सेप्ट केम अप फर्स्ट, इट केम अप फर्स्ट विद Amazon, एंड दे सेड इतने सारे लोगों को मशीन की जरूरत पड़ती है और देन उनको मशीन की जरूरत नहीं पड़ती. वो आज उनको चाहिए, हो सकता है 2 साल बाद नहीं चाहिए हो, या उनको केवल थोड़ी देर के लिए चाहिए फिर नहीं चाहिए. सो ये इलास्टिसिटी कैसे मेंटेन करें हम, राइट? दिस वाज वन यूज केस बिकॉज दीज सर्वर्स वर कॉस्टली. ये मशीन्स जो आप लैपटॉप खरीदते हो, इनसे भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट की जो सर्वर्स होते हैं वो आते हैं. कैन रेंज अराउंड 4 लाख 5 लाख ऐसे रेंज में आते हैं ये जो बेयर मेटल सर्वर्स होते हैं. इट्स अ कॉस्ट, राइट? सो व्हाट दे डिड, दे सेड ओके, हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करके रखेंगे अपने पास, और हम एक उसके ऊपर एक एब्स्ट्रैक्ट लेयर बना के रखेंगे विच इज एन इंटरफेस बिटवीन द क्लाइंट हु नीड दैट सर्वर एंड बिटवीन आर एक्चुअल डेटा सेंटर. सो उन्होंने बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग में बहुत सारी मशीन इकट्ठी कर दी हैं. उसको हम अवेलेबिलिटी जोन्स कहते हैं और अलग अलग रीजन्स में रख दिए हैं. तो फॉर एग्जांपल इंडिया में आई थिंक 2-3 जोन्स, आई थिंक मुंबई जोन है एक, आई थिंक इंडिया में ओनली वन एक जगह डेटा सेंटर है विच इज मुंबई. Then you have something in US, Europe, you name it, and Africa, you will have it everywhere. And what this data center mean is there is a building, बहुत बड़ी building है, उसमें बहुत सारे 50-60 हजार कंप्यूटर रख दिए हैं उन लोग ने. And they have done the networking and interfacing such a way that when you say from the console, when you go to AWS console, when you go here at that time, you can really do you can really go and say I want this server in this region. So वो automatically जो request है आपकी उस server पे जाएगी और उस server से वो एक server आपको allocate हो जाएगा. एक पूरा networking interface बनेगा, virtual private network जिसे कहते हैं VPC, और उसमें वो computer connect हो जाएगा and then you can access it, right? So that is the story of how AWS does things. Very, very brief explanation of how AWS manages these things. So these machines जो आप यहाँ use करते हो, they are actual machines placed somewhere. This is not हवा में machine. हम कहते हैं इनको virtual machine, but they are not virtual. They are virtual for you, because आप उनको virtually access करते हो, right? But they are actual machines placed somewhere. कहीं पर रखी हुई हैं actual machines ये. ओके जो आपको उस समय के लिए, जब तक आप EC2 इंस्टेंस को आपने बनाया, उस समय के लिए आपको एक्सेस, आप उसको कर पा रहे हो. फाइन. नाउ अब जो वो मशीन्स हैं जो वहां पे रखी हुई हैं, आपको उस पर कुछ करना है, राइट? यू वांट टू डू समथिंग देयर, सो यू हैव टू एक्सेस इट. विदाउट एक्सेसिंग इट यू कैन नॉट डू एनीथिंग. अब एक्सेस करोगे तो एक्सेस किसी भी चीज के लिए, आपको पता है इंटरनेट के वर्ल्ड में और एनी सॉफ्टवेयर वर्ल्ड, इफ यू वांट टू एक्सेस समथिंग यू वांट टू ऑथेंटिकेट. So, and it's not authenticate, it's also something called as authorization. So authentication and authorization are two words which is widely used in terms of identity management. Authentication means आप कौन हो, आपकी identity क्या है, what is you, who are you. Authorization means I know your identity, but I need to know what you can do. So things which you can do is authorization. Things or who you are is an identity, and it's called as authentication, right? So there are two things, authentication and authorization. Okay, fine. Now let's talk about SSH. Now what is SSH? SSH is a secure shell. It's a software which came up in the Linux world or Unix world, and it has two parts. One is SSH client and SSH
server. Okay, I think I'll quickly draw it, because without understanding SSH, you will never be able to manage any system, because any system you want to manage, you want to access it. If you want to access it, you can only do it with one way, which is SSH. There are many ways, other ways, but the most secure way is SSH. And that's what you will have to do. Fine. So I'll go back here and I will talk about SSH today. Okay, very quickly. SSH. So SSH. Okay, so this is you. When I say you, let me create a sample here. Okay, so this is you. Let's say you want to access an EC2 instance, right? This EC2 instance, actually EC2 instance अपने आप में तो कुछ नहीं है, right? वो एक Amazon का एक क्लस्टर है, एक इंटरफेस आपको मिला हुआ है उसमें AWS के अंदर, let's say EC2 instance आपने बनाया हुआ है, right? Now this EC2 instance is what? It is actual physical machine placed somewhere जो आपको नहीं पता है. Okay, this is a secure system. सिक्योर नेटवर्क, एक बिल्डिंग होगा, वहाँ पे वो बिल्डिंग में 24 आवर का फैसिलिटी होगी. One of my friend actually works in such data centers. He was telling me a lot of things, how things work, but it's very secure area. And 24 आवर पावर जनरेशन का भी जनरेशन, अगर जनरेशन फेल हुआ तो दूसरा जनरेटर, वो जनरेटर फेल हुआ तो तीसरा जनरेटर है. सो दे हैव दिस मैनी फॉल्ट टॉलरेंस कि अगर एक फेल हुआ तो दूसरा रहेगा, राइट? एंड देन इट हैज अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ नेटवर्क्स, और बहुत बड़ा एक रूम होता है वहाँ पे और बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं. देन इट्स ऑल मशीन्स देयर, and then everything is automated. Their engineers are continuously working to make sure that if one node is not working, they replace it with some other. So a lot of things are happening. So those things are placed in an actual secure data center. And data center कभी भी एक नहीं होता है, किसी भी region में दो multiple data center होते हैं, at least 2 तो होते हैं. उसे कहते हैं availability zone. So I think this is turning into some AWS lecture, which is good. So I think I got an opportunity with this question to explain you a few more things on AWS. So AWS has this concept of region. So I will put here like this. This is a region. Availability zone, also called as AZ. AZ1, and then let's call this an AZ2. बहुत छोटा हो रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. अवेलेबिलिटी जोन, और ये है अवेलेबिलिटी जोन 2, अवेलेबिलिटी जोन 1. Okay, and this is a region. This is placed inside a region. अब ये region क्या होता है? Region can be your US region, Europe region, India region, Singapore region, Africa region. There are different regions. In every region, there can be one or more such availability zones. And availability zones actually represent a separate building. और ये building is actually connected with their networks. So their proper network connected. It's connected with the proper networks. Okay. Yeah. Okay, I'll put it down. Okay, and the objective is fault tolerance. कि अगर एक आपने EC2 इंस्टेंस यहाँ बनाया तो वो इस EC2 इंस्टेंस का एक रेप्लिका यहाँ भी बन जाएगा automatically without any extra cost. This is like internal functionality of Amazon AWS to give you fault tolerance. कि किसी वजह से भूकंप आया और ये डेटा सेंटर उड़ गया, यहाँ आग लग गई और पूरा उड़ गया, तो वो डेटा लॉस नहीं होगा क्योंकि डेटा आपका दूसरे डेटा सेंटर में सेम है, तो आपकी साइट भी खराब नहीं होगी और कुछ भी नहीं होगा. ओके, so that's how it works. So any zone जब भी AWS आता है तो वो हमेशा 2 डेटा सेंटर लगाता है. इन डेटा सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है मोस्टली 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के आसपास का होता है. बिकॉज अगर एक जगह आग लग गई या एक जगह बॉम्ब फट गया तो कम से कम वो दूसरा डेटा सेंटर है वो तो सेफ रहेगा, वहां तो डेटा आपका बरकरार रहेगा उस जगह पर. ओके, सो वो जब आपने EC2, I'll come back to the actual problem. So जब वो EC2 इंस्टेंस आपने बनाया तो वो हुआ ये कि यहाँ पर एक मशीन क्रिएट हो गया आपका. लेट्स कॉल दिस अ वर्चुअल मशीन. Why I am saying virtual machine here? Because वो जो मशीन है उसके अंदर भी हो सकता है वर्चुअलाइजेशन हो. सो आपका जो एक्चुअल मशीन होता है OS का, उसके अंदर ऐसे सिस्टम पॉसिबल है जहाँ पे आपका ये बेयर मेटल है
एक्चुअल डेटा, एक्चुअल मशीन, उसके ऊपर आपने एक हाइपरवाइजर लगाया हुआ है किसी तरह का, या वर्चुअलाइजर लगाया हुआ है वीएम, और उसके अंदर, उसके ऊपर आप मल्टीपल ओएस रन कर रहे हो। तो जब आपने EC2 इंस्टेंस, शेयर्ड EC2 इंस्टेंस चलाया, तो वो बेसिकली यहाँ पे उसका एक हो सकता है इंस्टेंस क्रिएट कर दे छोटा सा। तो ये आपका एक्चुअल मशीन हो जाएगा विद ओएस, जो AWS स्पिन अप करेगा। जब आप माइक्रो वाइक्रो ये जो मशीन चलाते हो, जब आप डेडिकेटेड लेते हो तो आपको डेडिकेटेड मशीन मिल जाती है, पर अगर आपको फ्री वाला चाहिए तो उसमें आपको इस तरह से मशीन मिलती है एक। तो ये जो EC2 इंस्टेंस है, दिस इज पॉइंटिंग टू दिस मशीन लाइक दिस। अब आप यहाँ बैठे हो, आपको एक्सेस करना इसको, तो कैसे करोगे? सो यू ट्राई टू गो वाया EC2 इंस्टेंस, राइट? तो EC2 इंस्टेंस क्या होता है? EC2 इंस्टेंस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस मशीन एंड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस मशीन. So this is a logical representation of this actual machine, which is encapsulated as an EC2 instance, which you get to see. Right? This is how really things work. Okay. अब आपको कनेक्ट करना है इसको, राइट? अब आपको, जब आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको बेसिकली 3-4 चीजें सेट करनी पड़ती हैं। एक तो आपको सेट करना पड़ता है VPC, क्योंकि जब आप कोई भी रिसोर्स AWS में क्रिएट करते हो तो आपके लिए वो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाता है। तो ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, इमेजिन करो ये आपका VPC है, मतलब केवल आप कनेक्ट कर सकते हो उस VPC से, क्योंकि आपने अपने में क्रिएट किया हुआ है, और आप किसी को एक्सेस दे सकते हो, लेकिन ये आपका पर्सनल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है। सेकंड आपको चाहिए पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए चाहिए पड़ता है सिक्योरिटी ग्रुप, राइट? सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है AWS में? सिक्योरिटी ग्रुप होता है जिसमें कि कुछ रूल्स होते हैं, राइट? सिक्योरिटी ग्रुप इज नथिंग बट द रूल्स ऑफ व्हाट काइंड? फायरवॉल रूल्स। व्हाट इज फायरवॉल? फायरवॉल मींस कि मैं किस तरह के एड्रेस को ब्लॉक करूंगा और किस तरह के एड्रेस को अलाउ करूंगा, अलाउ एंड डिसअलाउ, ये रूल यहाँ पे होते हैं। अगर आप नॉन IT बैकग्राउंड के हैं, सो अंडरस्टैंड दैट एनीथिंग विच रन्स ऑन इंटरनेट ऑलवेज हैव एन IP, राइट? क्योंकि हर चीज इंटरनेट पे जो चल रही है वो चल रही है किसी ना किसी मशीन के ऊपर। अगर वो मशीन है और इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसका एक IP होगा, और उस IP, उस कंप्यूटर की उस मोमेंट पे आइडेंटिटी होगी, एड्रेस है, बेसिक नॉट आई शुडंट से आइडेंटिटी, इट्स एन एड्रेस ऑफ दैट स्पेसिफिक मशीन, वेरी सिमिलर टू एड्रेस ऑफ योर, वेरी सिमिलर टू योर होम एड्रेसेस, राइट? आपके होम एड्रेस में का जो पूरा एड्रेस होता है वही उसका IP एड्रेस होता है, और उस IP एड्रेस पर कुछ पोर्ट्स होते हैं। व्हाट आर पोर्ट्स? जैसे बीच होते हैं जो कंट्रीज के, वहां पर पोर्ट्स होते हैं, राइट? तो शिप्स कैन कम एंड डॉक देयर, और सामान उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते। तो पोर्ट अगर आप ओपन करोगे तो वहां पे शिप आने लगेंगे, डेट मीन्स ट्रैफिक आने लगा उस पोर्ट पे, राइट? तो शिप वहां पे आएंगे, अपना सामान उतारेंगे, चढ़ाएंगे और चले जाएंगे। आप नहीं चाहते आपके पोर्ट पे कोई आए, तो आप उस पोर्ट को ब्लॉक कर दोगे, राइट? सो ये सारे रूल्स यहाँ पर अप्लाई करने पड़ते हैं आपको, जिसको सिक्योरिटी ग्रुप कहते हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन अ वेरी वेरी layman terms, very very layman terms, because this is a basic session and I will talk very basic things. So VPC, security group, then rules, firewall, allow, disallow. What are you allowing, disallowing? You're allowing or disallowing two things. One is IP addresses, second is port from there for that IP address. ठीक है? सॉरी, पोर्ट ऑफ दैट मशीन, क्योंकि पोर्ट मशीन के होते हैं, मशीन के अंदर जो एड्रेस मिला है उसमें पोर्ट होते हैं। अब अलग अलग पोर्ट को एक्सेस कैसे करते हैं, राइट? जैसे मुंबई में है ना, जैसे क्या है वो कोलाबा बीच, राइट? सो भी मैं ऐसा बोलूंगा, मुंबई स्लैश कोलाबा। सो मुंबई इज माई IP एड्रेस, कोलाबा इज माई पोर्ट। कौन सा बीच है, कौन सा पोर्ट है, ठीक है? फिर और कौन सा यार मुंबई में बीच? मुंबई में मरीन लाइंस, Juhu, हाँ, जुहू, जुहू, मरीन जुहू, अरे लाइंस, हाँ, Juhu beach. जुहू आई लव, हाँ, मरीन जुहू लाइंस बीच। भी है, राइट? मरीन लाइंस, right? So understand this, that this is the address. So I'm simply saying Mumbai. It could be more. Address can be more, right? Address can be क्या नाम है वहाँ पे? चिंचपोकली, एक चिंचपोकली जगह ना वहाँ? It's a funny name. यस सर, Yeah. So चिंचपोकली dot, सेंट्रल लाइन। yes. Chinchpokli dot Mumbai is your IP address, and Kolaba is your beach or is your port.
ठीक है. So this is how the address of a machine works. So address, so this is your address, this is a port. ठीक है. Why I am mentioning this address and port? Because SSH in some way connected to that. ठीक है. Now हर मशीन में कुछ ports allocated होते हैं for certain traffic. Automatically वो allocated है, industry standard है, and everyone adheres to it. Okay. Let me open a link so that I could show you what are those ports. Okay, can anyone tell me the basic one, at least while I search for it? SSH नहीं तो पोर्ट का नंबर, एसएस का पोर्ट का नंबर क्या है? SSH 22 22 Yes, correct. and HTTP 80 अगर HTTPS 443 443, Okay. हाँ ठीक है, good. HTTP 80 वेरी गुड, ठीक है, गुड. सो क्या है कि कुछ पोर्ट्स ऑलरेडी डिसाइडेड डेडिकेटेड करके रखे हुए हैं. अब हम सारे पोर्ट्स तो नहीं याद रखने की जरूरत है, पर एटलीस्ट बेसिक तो याद ही रखना है. जैसे कि लेट मी पुट इट हियर, राइट. सो 3 पोर्ट तो हमेशा याद रखो. पोर्ट 80, पोर्ट 443 एंड पोर्ट 22. 22 is always listens SSH. SSH का जो क्लाइंट है वो S42 पे सुनता है. मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है. HTTPS या TLS और HTTP. तो जब भी आप कोई सर्वर क्रिएट करोगे, उस सर्वर का एड्रेस आपको मिलेगा. उस एड्रेस, वो एड्रेस बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली HTTP के ट्रैफिक को 80 पे सुन रहा होगा, राइट. तो पोर्ट पे कुछ बेसिकली मशीन के अंदर कोई ऐसी चीज होती है जो कि उस पोर्ट पे रिसेप्टिव होती है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा मशीन है, इसका आईपी एड्रेस है 1.2.3.4 एंड लेट्स से मैं छोटे छोटे पोर्ट बनाता हूँ. लेट्स से ये मुंबई का शहर है, राइट. यहाँ छोटे पोर्ट है, कोलाबा बीच. अरे क्या हो रहा है? कैसे बनाऊं? हाँ, ये पोर्ट है, ये है पोर्ट 80. फिर एक पोर्ट है 443, फिर एक पोर्ट है 22. तो जब कोई ट्रैफिक आएगा इस पोर्ट पे कहीं से, लेट्स से किसी ने कोई ट्रैफिक भेजा यहाँ से, लेट्स से दिस इज मी, और मैं कर रहा हूँ इस पोर्ट पे, आई एम नेविगेट, आई वांट टू से 1.2.3.4 पोर्ट 80. तो when I say this, it is equivalent to saying 1.2.3.4. तो ब्राउजर को हमेशा पता होगा कि ये 80 पे ही सुन रहा होगा. तो हमेशा जब आप किसी ब्राउजर पे जाके amazon.com भी लिखते हो तो वहां पोर्ट 80 नहीं देते हो, या कुछ आईपी डालोगे तो 80 नहीं दोगे. क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली 80 पे ही जाने वाला है. और इस 80 पर अंदर, इस मशीन के अंदर एक ऐसी एंटिटी होगी, किसी तरह का सर्वर होगा. वो सर्वर हो सकता है आपका Nginx या कोई टॉमकैट, कोई भी सर्वर हो सकता है. वो ऑटोमेटिकली जो भी यहाँ ट्रैफिक आएगा वो उस सर्वर के पास चला जाएगा. ठीक. सेम चीज होगी TLS के लिए, कि अगर TLS मतलब कि HTTP है, जब आप किसी इसको HTTPS करते हो, सो ऑटोमेटिकली वो जो ट्रैफिक है वो 443 पे जाता है. ठीक है. अब यहाँ अगर कोई सर्वर नहीं सुन रहा है तो वो आपको एरर दे देगा, कह देगा नहीं यहाँ कोई सर्वर नहीं सुन रहा, मतलब HTTPS एनेबल नहीं है सर्वर पे. ठीक है. तो वो कॉन्फ़िगरेशन आप Nginx या सर्वर लेवल पे कर सकते हो. Similar to that, there is one more entity which is called as SSH daemon और SSH server बोल दो. चलो SSH server. So SSH server normally सर्वर पे रहता है. सर्वर पे SSH server किसी भी होस्ट पर, मैं इसको बोल रहा हूँ होस्ट, आई एम सेइंग दिस इज अ होस्ट एंड आई एम सेइंग दिस इज अ सॉफ्टवेयर. एक सॉफ्टवेयर है ये जो मैंने इस सर्वर इस पे इंस्टॉल किया है. ये जो भी ये दिख रहा है ना सर्वर इंजन है, ये सब सॉफ्टवेयर ही हैं जो कि इस मशीन के ऊपर मैंने इंस्टॉल किए. ठीक है. सो जब ये बंदा इसको यहाँ से एक्सेस करेगा और वो कहेगा SSH, मुझे इस सिस्टम के टर्मिनल को एक्सेस करना है, सिस्टम के अंदर की चीजों को एक्सेस करना है. तो जब वो SSH करेगा तो वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट 22 पे उसकी रिक्वेस्ट जाएगी. SSH की रिक्वेस्ट पोर्ट 22 पे जाएगी और वहां पर उसको सर्व कौन करेगा? SSH सर्वर. अगर इस मशीन पे SSH सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो 22 रिप्लाई बैक करेगा
मुझे नहीं पता क्या क्या करना चाहते हो, डिनाइड, सॉरी, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर SSH सर्वर इंस्टॉल्ड है और इसने एक्सेस करने की रिक्वेस्ट मांगी पोर्ट 22 पे, और अगर SSH सर्वर के पास इस बंदे की आइडेंटिटी नहीं है या वो उसको वेरीफाई नहीं कर सकता किसी भी तरह से, तो कह देगा डिनाइड, कि मैं एक्सेस नहीं कर सकता तुम्हारे, तुम क्या है तो मुझे नहीं पता, हु आर यू, आई डोंट नो। तो ऑथेंटिकेशन and in some way authorization also can be managed via that, but let's not go into authorization part at the moment. Let's just worry about authentication, because eventually if you want to do anything, अगर मुझे इस मशीन पर Nginx सर्वर भी इंस्टॉल करना है तो भी मुझे SSH का एक्सेस लेना पड़ेगा, तभी तो मैं इस पे कुछ कर पाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ओए फाइन, ठीक है। सो ये एग्जैक्ट सिचुएशन होती है यहां से, तो ये EC2 में जाता है, ये इसको राउट करता है मशीन के पास, मशीन में ये जो है दिख रहा है ना, ये मशीन का पिक्चर है, समझ लो अंदर का, राइट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द मशीन, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, आई क्विकली गो बैक, मैं EC2 में जाऊंगा, एंड EC2 में जाकर लेट्स से व्हाट इज रनिंग राइट नाउ। ओके, आई हैव दिस मशीन विच इज रनिंग, माई फ्लास्क API एनवायरनमेंट नाम का एक मशीन मेरे पर रन हो रहा है। ओके, तो जब मैं एक मशीन क्रिएट करता हूँ, राइट, तो Amazon मुझको एक अपॉर्चुनिटी देता है टू जनरेट अ की पेयर, राइट। सो SSH के पास दो मैकेनिज्म है, लेट जस्ट से और भी है, पर लेट जस्ट से 2 मैकेनिज्म है। एक तो ऑथेंटिकेट करने का सबसे इजी तरीका क्या है, यूजर नेम पासवर्ड। तो मैं यूजर नेम पासवर्ड को समहाउ यहाँ पे सेव कर दूंगा, समहाउ यहाँ पे सेव कर दूंगा ऑन दिस होस्ट, एंड वंस आई डू दैट, and when I try to connect with this, and if I have a username and password with me, I will go ahead and enter कि भाई मैं SSH connect करना चाहता हूँ, username ये है, password ये है, please connect me. So then it will go ahead and connect me with that machine, right? So that's one way. Second way, which is now actually being used and it's more secure, is public private key cryptography, right? It's also called as asymmetric cryptography. इसका मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया था कहीं पर पहले। बाय द वे, बिकॉज आई एम हियर ऑन द टॉपिक ऑफ पोर्ट, सो यहाँ पे देखो सेम क्लस्टर, जब मैं क्यूबरनेट्स का क्लस्टर बता रहा था तो यहाँ पे मैं यही बता रहा था, राइट। ये मशीन है, ये एक मशीन है, इस मशीन का IP ये है, मशीन का IP है, और इस मशीन का एक पोर्ट है 30123 3123। सो जो एक्सटर्नल क्लाइंट है, अगर उसको किसी मशीन को एक्सेस करना है तो वो उसका IP और पोर्ट दोनों के थ्रू उसको एक्सेस कर सकता है। So this port is always there with any machine. Anyway, I'm digressing, but let me quickly go back to public private key cryptography. कहाँ बताई थी मैंने, ये बताई थी शायद, हाँ, right? So यहाँ क्या बताया था मैंने, right? मैंने बताया था there are 2 ways to access a system. One is secret key. It's called as symmetric cryptography, कि मैं एक की है, बस एक ही की है मेरे पास, और वो उस की को मैं यूज करके किसी डेटा को एनक्रिप्ट करूंगा, और वो की फिर मैं उस दूसरे पार्टी को दूंगा जिसको मुझे वो सिस्टम पहुंचाना है, फिर वो दूसरा बंदा उस की को यूज करके उस डॉक्यूमेंट को खोल लेगा, राइट। दैट दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब एक ही की है मेरे पास। इसमें चैलेंज क्या है सिमेट्रिक की में, कि इफ आई डू दैट, then I will have to worry about how will I make sure that the secret key reaches the third party safely, कि वो मैं की उसको कैसे दूं, राइट। मैं तो एक्सेस से डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं है उसका, तो मैं उसको कैसे भेजूंगा। So that is the problem with the symmetric encryption, and that's why we have to start using asymmetric key cryptography, which is also what SSH can also use. That's what we actually use. So that combination of, there's not in asymmetric key cryptography, there is no two keys, there is only, sorry, there is not one key, there are two keys. One is private, one is public. Okay. So जब मैं EC2 instance में, when I go here and let's say मैं एक launch instance करता हूँ, when I go and launch instance, I give it any name, let's say any name, मैं इसके आगे एक Z लगा देता हूँ, that means I have to delete this, then I say this machine and micro, and here it asks me for a key pair. It says key pair login. You can use key pair to securely connect to your instance वगैरह वगैरह। ये जो key pair है, this is something which I am explaining here. So जब ऐसे नाम में समझ में आ रहा है ना की पेयर, तो दो पेयर है, पेयर मतलब दो, राइट। सो की पेयर,
पब्लिक की एंड प्राइवेट की। जब मैं वो की पेयर यहाँ बनाऊंगा, राइट, व्हेन आई से आई वांट टू, आई हैव ऑलरेडी सम pairs here, but I say create a new pair. When I say create a new pair, it asks me, can you give me a name of that key? I say key new, as add new key. Okay, new key. When I do that, then it asks me for what kind of encryption I want to use. A very common encryption which people use nowadays is RSA, but there is also something called as ED25519. You can create, इसका advantage ये है कि you create a, it creates a smaller size and it's more secure. Sorry, more secure. But I am using RSA here. Okay. So when I say RSA, इसके दो impact होंगे. Okay. The two impacts which will happen here is that once I click on create key pair, it will ask me to download something. Okay, so I say download, for example, मैं यहाँ download कर लेता हूँ. I say okay, rather मैं एक काम करता हूँ, I will go and download this in my SSH folder. मुझे वहाँ install वहाँ रखने की जरूरत नहीं है, but I am just for showing you something later, I am just putting it there. कहाँ गया मेरा SSH folder .ssh? Where did it go? Am I looking in the wrong place? Anyway, I'll do that later then. Fine. So I will just place it here in the folder Visual Code. Okay, यहाँ मैंने save किया. What is the content of this file? The content of this file is this. So I'll open with other. Let's say I'm opening this with Sublime Text. Okay. So this is the content of the file. I'm not supposed to show this on the screen because this is a recorded session, and if this leaks out, my system will be compromised. But I don't have to worry for that because I'm going to delete it anyway later. But I'm still showing you. This is saying it is begin RSA private key. It's a RSA private key. That means this private key, as the name suggests, is private. It will always should remain with me, and it should be in a safer location. It should not be shown to people, because if someone get access to this, that means my system, whoever is using its counterpart, इसका counterpart क्या है? Public key, right? So AWS ने दो काम किए हैं. एक तो उसने दो की बनाई है, एक बनाई है प्राइवेट की, एक बनाई है पब्लिक की. प्राइवेट की उसने मुझे दे दी, बोला इसको डाउनलोड कर लो. मैंने डाउनलोड कर लिया, अपने पास रख ली सेफ. पब्लिक की वो उसने अपने पास रखी हुई है, और जैसे ही मैं कोई मशीन बनाऊंगा, EC2 मशीन जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, राइट, वो उसके SSH फोल्डर में वो की को सेव कर देता है. So इसकी जो पब्लिक की काउंटर पार्ट है वो ऑटोमेटिकली EC2 इंस्टेंस, AWS ऑटोमेटिकली EC2 इंस्टेंस में अपने आप सेव हो जाएगी. वो आपको नहीं करना है, वो अपने आप हो जाती है. So you don't have to really do that. Okay, now I go here, I select the VPC. मैं select किया, कोई भी आप डिफॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हो. This is what I've created, security group, blah blah. Okay, I'll go and click on launch. Okay, so while it's launching, ये जो भी initiation यहाँ पे इसका हो रहा है, whatever it is doing for the initiation, this is pending, right? This machine which is pending. Here you can also see कि वो क्या क्या use कर रहा है. All those information you will see here. Security group and networking and everything you will able to see. Now I want to access this machine, right? How will I go and access this? So I can use a SSH client. What is SSH client? So SSH client, I told you, right? अब ये बंदा अगर SSH सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, बाय द वे जो मैं अभी आपको बता रहा था वो ऐसा कुछ है कि जब EC2 बना तो एक EC2 सर्वर के पास पब्लिक की भी आ गई है. सो इस EC2 इंस्टेंस में पब्लिक की है जो कि ये यूज करेगा ऑथेंटिकेट के लिए. ये बंदे के पास है प्राइवेट की. दिस गाय हैज अ प्राइवेट की, जो मैंने अभी imagine this is me. Okay, so this guy has a private key, which is me. I have a private key here, and when I say SSH access the server, it will go to port 22 and I will access SSH server, and then SSH server will use this private key and then match it with public key. So हर एक private key की केवल एक ही public key possible है, और हर public key केवल एक ही private key possible है. That means अगर ये की यहाँ पे आई और SSH सर्वर ने उसको खोल लिया using this public key, that means that identity is confirmed.
कि इस बंदे की जो आइडेंटिटी है वो कंफर्म्ड है, क्योंकि इस प्राइवेट की को केवल यही पब्लिक की खोल सकती थी और तो कोई खोल नहीं सकता। सो अगर कोई हैकर आएगा वो कुछ भी उल्टी सीधी प्राइवेट की डालेगा तो वो पब्लिक की उसको खोल ही नहीं पाएगी। दैट मीन सर्वर रिजेक्ट कर देगा उस रिक्वेस्ट को। अगर ये चोरी हो गई प्राइवेट की, देन यू गॉन। दैट मीन्स देन एनीवन कैन गो एंड एक्सेस सर्वर। और इसीलिए उस टाइम में मैं आपको बोल रहा था कि यू हैव टू मेक श्योर दैट वन प्राइवेट की इज यूज्ड ओनली फॉर वन सर्वर, कि अगर वो लॉस हुई तो केवल वो सर्वर कॉम्प्रोमाइज होगा। अगर आपने एक प्राइवेट की को सारे सर्वर को के लिए यूज किया हुआ है, तो एक प्राइवेट की के लॉस होने पर सारे सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, तो बिगर blast radius हो जाएगा. So you have to minimize the blast radius. That means a good practice is that you use just one private key for one server, and you should keep on modifying it. Don't keep it for too long. After maybe let's say you have a periodically आप उसको change करते रहो. That is the best practice. So अगर वो कहीं चोरी हो भी गई है तो then you delete that public key from here and replace it with the new public key. वो भी आप local system से generate कर सकते हो basically. So you can use SSH keygen. Okay, which file to save the file ID RSA. यार मेरा कुछ उड़ ना जाए वहां पर कोई की, एक मिनट। हाँ, या फिर मैं फाइल नेम डाल देता हूँ। ओके, फाइल नेम इज AKT ID, something like that. Okay, enter passphrase Akash, same passphrase again Akash. ओके, उसने फाइल बना दी है। ओके, अब देखो कहाँ बनाई है इसने, बनाई है SSH में बनाई है क्या? एक मिनट, लेट मी ओपन इट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, जो AWS ने यहाँ पर की बनाई है आपकी, वो आप लोकल पे भी बना के रिप्लेस कर सकते हो। इट्स नॉट AWS जॉब टू डू दैट. AWS has made it easy for you to do that, but if you don't want to use it, then you can generate your own key and then can replace it. रिप्लेस क्या करोगे? SSH में जाकर, यहाँ जाकर पब्लिक की को रिप्लेस कर दोगे। पब्लिक की कहाँ है? लेट मी ओपन इट क्विकली, मैंने अभी भी बनाई है। .ssh. okay, this is where I am. एक्चुअली यहाँ नहीं बनाई है इसने, मैंने गलत पाथ दे दिया था इसको। क्या नाम दिया था मैंने? AKT ID। देखो यहाँ बनाई है उसने AKT ID। ये this is what it created. If I open this, I should have given it a .pem, but I did not, which is okay. देखो ये उसने प्राइवेट की बनाई है, एंड उसने इसी नाम की एक पब्लिक की बनाई है, which is this one. This is a public key SSH RSA. और ये जो पब्लिक की है, this is what I am going to place in my EC2 instance. So EC2 instance यहाँ पे देखो आ गया. Let me demonstrate that very quickly. So इस EC2 को इंस्टेंस को एक्सेस करना है मुझे टू यूजिंग SSH. लेट्स से अभी मैं ये जो की बनाई इसको भूल जाओ, अभी मैंने क्या की बनाई। इमेजिन AWS ने जो की जनरेट की थी, जो मैंने पहले सेव करी है, राइट? लेट्स से दैट इज व्हाट आई हैव एंड दैट इज व्हाट आई विल यूज टू कनेक्ट टू दिस मशीन। ओके, सो कनेक्ट करने के सबसे पहले तो मुझे इसका IP चाहिए। इफ आई गो हियर, लेट मी क्लियर इट, लेट मी मेक इट बिगर। SSH मशीन का नाम डाला सीधे, देखो क्या करता है। कुछ भी नहीं कर रहा है। आई थिंक इट्स ट्राइंग टू रीच इट बट इट्स नॉट एबल टू डू इट। ओके, अब मैं दूसरा टैब खोलता हूँ, वहां पे मैं डालता हूँ SSH। ओके वेट, ओके सो आई हैव, ये जो मैंने की अभी डाउनलोड की यहाँ पे, राइट? सो आई विल यूज SSH-I. I means identity or input. So I'm saying Z new key cert, and then I'm giving the IP. Will it connect it now? What I am missing here. Okay, IP क्या यूज किया मैंने? Oh sorry, this is the private IP I'm using. I'm so sorry. I'm supposed to use public IP क्योंकि वो accessible है, वो तो accessible है ही नहीं वहां से।
कनेक्शन टाइम आउट हो गया, यहाँ पर भी कनेक्शन टाइम आउट ही होगा क्योंकि वो एक्सेसिबल है ही नहीं. आई विल से SSH एंड देन पेस्ट. ओके, नाउ इट्स सेइंग ऑथेंटिसिटी ऑफ होस्ट. उसको एक्सेस, उसने उस कनेक्शन किया उसके साथ, पर वो कुछ पूछ रहा है अभी. वो कह रहा है कि तुम इस होस्ट को मैं ऐड कर लूं क्या, एंड आई से यस. सो परमिशन डिनाइड आ गया बिकॉज पब्लिक की कुछ नहीं है. किसने डिनाई किया? दिस इज बाय डिनाइड बाय द मशीन इटसेल्फ, सेइंग भैया तुम्हारा, हम तुम्हें नहीं जानते, हु आर यू. सो इट डिनाइड इट. इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट है, इफ आई गो here under SSH फोल्डर, ये नोन होस्ट में वो होस्ट सेव हो जाता है बेसिकली. फिंगरप्रिंट, उसका फिंगरप्रिंट मतलब उसका एक SHA वर्जन सेव हो जाता है. लेट मी क्लोज दिस. सो वो नहीं पे, वो उसको मना कर देगा कि मैं नहीं, आई डोंट नो हु यू आर. राइट नाउ आई विल डू व्हाट, आई विल, बाय द वे, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ मैं आपको लोकल सिस्टम से दिखा रहा हूँ. दैट मीन्स इट इज द क्लाइंट. राइट, ये क्लाइंट है, इसे कहते हैं SSH client. So I have already installed an SSH client on my machine, SSH client. आपके सिस्टम पे हो सकता ना हो. So if you want to do that, then you have to install SSH client, and only SSH client along with private key can go and then access at port 22 to the SSH server. SSH server will then authenticate whether the private key which SSH client has sent is right. If it is right, then it responds, otherwise it doesn't. Right? So I go back and I will do it again. इस टाइम देखो मैंने की भेजी है उसको, आई सेंड द की. अभी वो ऑथेंटिकेट कर, ओ सॉरी, माय बैड, मैं फिर से पुराना आईपी यूज कर रहा हूँ यहाँ पर. आई एम सपोज टू यूज, ओ गॉड, आई एम सपोज टू यूज दिस इज द पब्लिक वन. देखो यहाँ पे मैं पोर्ट 22 नहीं कह रहा हूँ. व्हाई? बिकॉज बाय डिफॉल्ट SSH पोर्ट 22 पर ही जाता है, सो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है. Okay, permission denied. Permissions for this are to open. Okay, इसमें इसको मुझे chmod करना पड़ेगा actually. Chmod. This is how I want to say. ये जो मेरी फाइल है, this new key dot sir 0645, I think, if I'm not wrong. No, wait, let me quickly find out. Anyone remember this? Rather, I have to go and find out. सर ये आगे लिखना पड़ेगा ना 645. बस 645 था इसका. मैं भूल गया क्या इसका, इसका एक्सेस करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? 440 I thought. 440 था क्या? Okay, let me quickly try. chmod 700 सर. 700. Are you sure? हाँ आई थिंक. अरे यार, new. Let's try again. हाँ परमिशन डिनाइड नहीं, इस बार तो वो की कोई नहीं ले रहा है. ओके, SSHIY नहीं, वो ये तो चल गया, ये सॉल्व हो गया, बट इट इज सेइंग परमिशन डिनाइड. सेट न्यू की डॉट सर, ये यूज किया भी था मैंने? नहीं किया था. विच की आई यूज्ड हियर? डिटेल्स, विच की डिड आई यूज? की पेयर तो यही यूज किया मैंने, सेट न्यू की. So this should have सर worked. ओल्ड की पेयर यूज करना पड़ेगा ना. अभी हमने नया पब्लिक की डाला कहाँ है उसके अंदर? हम क्यों डालेंगे? AWS खुद डालता है ना. ये तो बता रहा हूँ मैं इतनी देर से कि AWS खुद पब्लिक की उसके अंदर प्लेस कर दिया है. तो ये वाला मैंने क्या यूज किया है? सर कीजेन हमने सर्वर पे जाके क्रिएट किया है या अरे आपने भाई, लोकल पे ही क्रिएट किया? कीजेन भूल जाओ. कीजेन तो मैं जस्ट बता रहा था. अभी तो मैं पुरानी की से एक्सेस कर रहा हूँ ना. ये मैंने डाउनलोड किया है. अच्छा, ये ओल्ड की है क्या? हाँ, जो मैंने AWS से बनाई है वही यूज की है मैंने. ओके कीजेन ओके, जो मैंने अपने सिस्टम पे कीजेन बनाया है वो यूज किया ही नहीं अभी तो. वो नहीं यूज किया. नहीं. So it is saying denied. I don't know why.
Maybe something missing in the configuration. सर अपना EC2 यूजर @ डालना पड़ेगा। हम्म EC2 अरे यूजर हाँ SSH यार, -i EC2 यूजर @ क्या हाँ बात है, यहाँ पे वाह, yes yes yes, you have to put here AWS, EC, sorry, EC2 user, EC2 यूजर @ EC2 user @ हाँ, so this part वो I वाला ना forgot आएगा to, सर। हाँ, this part I forgot to tell is जब ये इसको एक्सेस करेगा तो इसको किस यूजर, वो यूजर जो है उसका एक्सेस भी देना पड़ेगा। तो जब ये OS है, इस पे जो भी यूजर है वो पहले से वो यूजर यहाँ होना चाहिए, एंड दैट यूजर इज व्हाट इट विल ट्राई टू ऑथेंटिकेट विद। So by default AWS का if I go here and show, for example I go here, ये वाला मुझे पहले दिखाना चाहिए था। So if I go here and say connect, here if I want to connect with SSH, it says do this. मैंने 600 यूज किया, but this is what I am supposed to use, chmod 400 znewkey.pem, and I should be using EC2 user like this. Okay, this part I missed, I'm sorry. I go back. अब चलना चाहिए यार। Yes, it worked. So now I am into the machine. Okay. So अभी इस मशीन पे देखो, मैंने ये चलाया, लिस्ट चलाया, I got a folder called .ssh. So इस SSH के अंदर जब मैं जाऊंगा, अभी मैं सर्वर के अंदर हूं, बाय द वे, ओके, आई एम इनसाइड द सर्वर। इसके अंदर मुझे एक ऑथराइज्ड कीज नाम की एक फाइल मिलेगी। इफ आई कैट दैट, दिस इज द पब्लिक की, ये है वो पब्लिक की विच इज पेयर्ड विद द की जो मैंने भेजी, विच इज दिस वन। सो ये प्राइवेट की थी, ये पब्लिक की है, और अगर पब्लिक की प्राइवेट की एक ही तरह से जनरेट हुई है तो ही वो उसको खोल पाएगा, नहीं तो ऑथेंटिकेशन डिनाई कर देगा। जब मुझे नई की बनाई है जो मैंने, आई कैन ऑल्सो डू दैट, वॉट एवर न्यू की आई हैव क्रिएटेड, आई कैन प्लेस इट हियर एंड देन आई कैन देन यूज इट विद द न्यू की। लेट्स ट्राई दैट। until unless I made a blunder, it should also work. ये पब्लिक की है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर authorized key. By the way, you can have multiple authorized key. Okay. And if I do a cat again, तो ये दो की आ गई है, एक ये है और एक ये की है जो मैंने लोकल पे जनरेट की थी। ओके, तो दो की है मेरे पास। अब मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, and this time I go to cd root and then I use ssh-i and I will use akt id.pub, sorry, akt id, मैंने pub डाली ना, ओ क्या किया मैंने, हाँ सही किया, pub डाली, akt id मेरे पास यहीं पर है, and then I'll use this to access my machine. Let's see if it works. Okay, this thing, copy, okay, passphrase is Akash, I put Akash, देखो लॉगिन हो गया, ठीक है। सो इट वर्कड बेसिकली, जो मैंने लोकल पे बनाई की वो वर्क हो गई, SSH मैंने कर लिया यूजिंग द जनरेटेड की। सो प्राइवेट की, पब्लिक की मैंने वहां पेस्ट कर दी थी, तो अब वो भी चल रही है। अब अभी मेरे पास आई कैन एक्सेस द सेम सिस्टम विद नाउ 2 कीज। जो AWS की है वो, AWS की कहाँ रखी मैंने, AWS की रखी है यहाँ पर, ये AWS ने जनरेट की थी मेरे लिए, तो वो AWS की जो जनरेटेड की है वो यहाँ पर है, और उसका जो कंटेंट है वो ये है, ये AWS ने खुद ही जाके रख दिया था जब उसने क्रिएट किया था। और जो दूसरी की है वो है यहाँ पर, जो मैंने अभी भी लोकल पे बनाई, कीजन यूज करके बनाई, akt id akt pub। तो मैंने ये akt id pub को यहाँ रखा, सेव किया। कहाँ सेव किया, ऑथराइज्ड की में। ऑथराइज्ड की कहाँ है, इट इज अंडर SSH फोल्डर, जो हर यूजर के अंदर बना होता है, हर यूजर का एक सेपरेट SSH फोल्डर होता है। एंड देन इफ यू गो इनसाइड cd.ssh, you get an file, authorized keys, and if you say a cat for this,
तो ये कंटेंट मिलेगा। तो ये पब्लिक की यहाँ पे सेव होती है और ये पब्लिक की मैंने यहाँ सेव कर दी है। ये पब्लिक की इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ AKT ID। ये वाली की मैंने AKTID.pub ये है और AKT ID मेरे लोकल पे है और AKT ID को यूज करके मैं आई कैन एक्सेस एंड इट विल ऑथेंटिकेट। Okay, so I've explained everything on SSH. Not everything, but something which is useful to make you understand how it is all working. और वो SSH agent का कितना क्वेश्चन पूछा था विनय आपने? I think you can also try that SSH agent। अभी इस पे एक प्रोसेस आईडी बनी हुई है which is this one PID 29242। that means SSH agent is a software which is running on this machine and SSH agent का primary purpose होता है to supply the values, let's just say supply the values। okay, so अगर मैंने जब वो pipeline create की थी Flask वाली, if you remember, I'll open that very quickly। वहां पर जो उसकी pipeline है उसमें यही part मैंने डाला था SSH agent। क्यों डाला था SSH agent वहां पर? बिकॉज मुझे प्राइवेट की भेजनी थी, राइट? अब अगर मैं SSH करूंगा तो प्राइवेट की यहाँ कैसे भेजूंगा? क्योंकि मैं फाइल में सेव नहीं कर सकता यहाँ। तो इफ यू रिमेंबर आई वाज सेविंग इट एज अ फाइल। एग्जिट, आई वाज सेविंग इट एज अ फाइल, राइट? ये मैं फाइल की तरह भेज रहा हूँ, इनपुट फाइल। बट आई कैन नॉट सेव फाइल, बिकॉज फाइल सेव कहाँ करूंगा? मैं फाइल सेव नहीं कर सकता ना। तो गिट में फाइल चली जाएगी तो एवरीवन वुड नो प्राइवेट की। सो आई हैव सेव्ड इट इन द वैल्यूज एज अ स्ट्रिंग। तो मुझे वो स्ट्रिंग को पास करना है SSH कमांड में, विच आई कैन नॉट डू डायरेक्टली। सो मैंने उसको SSH एजेंट नाम के एक प्रोसेस में सेव किया, लाइक दिस SSH add। वंस आई सेव्ड इट हियर, देन SSH को अगर आइडेंटिटी नहीं मिलेगी तो वो SSH एजेंट से पूछेगा। दो प्रोसेस आपस में बात करेंगी कि तुम्हारे पास की है क्या? बोलेगा हाँ है, ओके मैं दे दो मुझे। वो देगा और वो एक्सेस कर लेगा। सो दिस इज व्हाई वी यूज SSH एजेंट। ओके, cool। Any questions? सर आपने टू कीज, मतलब हम टू कीज भी एक साथ यूज कर सकते हैं? करा ना, देखो ना, दो हाँ प्राइवेट की बन गई ना यहाँ। एक हाँ। पब्लिक की है, सेकंड पब्लिक की। दैट मीन्स किसी के पास दो प्राइवेट की हैं, वो दोनों प्राइवेट की आई कैन कॉन्फ़िगर टू एक्सेस दैट मशीन। ओके। ऐसा समझो ना, दो मेरे पास कंपनी में 4 डेवलपर हैं। अब 4 डेवलपर उस मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस, राइट? तो या तो मैं अपनी प्राइवेट की जो जनरेट की है सबको चारों में बांटूं, पर बांटने का तो सेम प्रॉब्लम हो जाएगा ना कि मैं बांटूं कैसे? बिकॉज बांटूंगा तो वो इसके चोरी हो सकती है। सो आई कैन जनरेट मल्टीपल प्राइवेट कीज एंड कॉन्फ़िगर इट। और एवरी कीजन आपने लोकल पे ही किया था ना सर? यस, तो मैंने अपनी की जेन बनाई और समहाउ पब्लिक की को वहां पे प्लेस कर दिया। पेश कर अब दिया। पब्लिक की तो मैं किसी को भी भेज सकता हूँ, मैं किसी को भी कह सकता हूँ जिसके पास भी सर्वर का एक्सेस है उसको कहूंगा भाई मेरी पब्लिक की कॉन्फ़िगर कर दो प्लीज। अगर वो बंदा मुझे ट्रस्ट करता है तो मेरी पब्लिक की को कर देगा। पब्लिक की को मैं कैसे भी भेज सकता हूँ, होल वर्ल्ड कैन नो पब्लिक की एंड इट वोंट मैटर बिकॉज इट्स पब्लिक की। प्राइवेट की मैं नहीं बताऊंगा अपनी, वो मेरे पास ही रहेगी। दिस इज हाउ आई सिक्योर द सिस्टम। सब हर बंदे की खुद की प्राइवेट की होगी, प्राइवेट की कभी शेयर नहीं की जाती है। रिमेंबर दैट, बिकॉज इट्स प्राइवेट की, उसका नाम ही प्राइवेट की है। वो शेयर कर दोगे तो प्राइवेट नहीं बचेगी ना। यस सर। और SSH एजेंट में हम की सेव करते हैं, है ना? हाँ, ये तब करते हैं जब आपको एज ए फाइल इनपुट नहीं भेजना है। ये इस सिचुएशन में मुझे दैट इज व्हाट आई हैड टू डू। ओके। आप यहाँ पे मतलब डॉट पेम करके फाइल नहीं लिख सकते थे स्ट्रिक्ट मैं होस्ट की जगह? मैं डॉट पैम कहाँ लिखता ना यार, वो फाइल हाँ कहीं रखनी पड़ेगी ना मुझे। यहाँ पर कहाँ रखूँ हाँ, मैं रखनी फाइल? पड़ेगी। तो हाँ वो तो वो नहीं तो शेयर कर सकते, इसलिए आपने। हाँ, तो उसको अच्छा। मैंने वेरिएबल बना दिया था स्ट्रिंग में। वो अच्छा। कहाँ सेव हाँ किया हाँ मैंने? गिटलैब के वेरिएबल सेगमेंट में जो एनक्रिप्टेड है, वहां कोई वहां से किसी हाँ। को फाइल नहीं दिख सकती हो, इसलिए। ओके ओके। उसमें भी मैंने एक गलती की थी। एक मैं आपको गलती दिखा देता हूँ क्या गलती है। वो गलती ये है कि gitlab.com आकाश लैब, इफ आई गो हियर एंड इफ आई गो टू सेटिंग्स, अच्छा सेटिंग छोड़ो, मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्ड पाइपलाइंस। अब देखो पाइपलाइन देखो आप। इफ आई गो हियर, लेट्स से कोई भी पास वाले पे चला जाता हूँ।
अरे यार, तो पुरानी देखनी पड़ेगी। इस पे मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ कुछ दिनों से। ये सब कॉस्टली के हैं। CLI पे शो हो रही है, दैट इज द हाँ, करेक्ट करेक्ट। वो जो है ना, वो अगर तुम यहाँ जाओगी, डिप्लॉय टू EC2 में जाओ जैसे, सो यू विल सी दैट हियर, ये देखो। सो ऑलरेडी लीक हो गई है। ठीक है, ये प्राइवेट की लीक हो गई। क्यों हो गया है? क्योंकि मैंने गलती की। गलती क्या की? जब मैंने इसको CI/CD में डाला, वेरिएबल्स में एक्सपैंड वेरिएबल्स, तो आई डिड नॉट, इफ आई गो हियर, नहीं, ये मैंने यहाँ बनाया था आकाश लैब में, सेटिंग्स, CI/CD वेरिएबल्स। सो हियर जो SSH प्राइवेट की है, हियर आई शुड हैव डन अ मास्क वेरिएबल। मुझे यहाँ पे मास्क वेरिएबल करके कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने चाहिए थे ताकि ये वेरिएबल जो है दिखे ना लॉग्स में, बट आई डिड नॉट डू दैट। आई शुड हैव डन दैट। ओके। ठीक है, अब वो इसलिए वहां दिख रहा है। ओके, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, आई टू चेक। बट द पॉइंट इज, अगर आप कोई इस तरह की चीजें यहाँ रख रहे हो, so you better be sure that it's not leaked in any way or format. By the way, मैं फाइल की तरह भी कर सकता था इसको। there are different ways of handling this, but whatever I did or did not do, मेरा की तो लीक हो गया ना, वो लॉग्स में आ गया, की लीक हो गया। So ये भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। बहुत लोग डेवलपर ऐसी गलती कर देते हैं जहाँ पे कि वो कुछ पासवर्ड, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, वो लॉग्स में डिस्प्ले होने लगती है। फिर लॉग्स अगर डिस्प्ले किसी को मिल गया तो डेटा लीक हो गया। तो डेली बेसिस पे करोड़ों इंसिडेंट्स होते हैं, और कई तो पता नहीं चलते। बहुत लोग का डेटा लीक हो चुका होता है, वो 4 साल बाद पता चलता है कि लीक हो गया, क्योंकि वो डार्क नेट पे बिक रहा होता है। दैट्स हाउ दे नो, ओ हमारा डेटा लीक हो गया। राइट? सो all this is your responsibility, so you have to adopt best practices, कि भाई डेटा ना लीक हो, इस तरह की चीजें ना हो। एक ही की यूज कर रहे हैं 2 साल से, तो अगर आपकी एक ही यूज कर रहे 2 साल से, तो ऐसा नहीं है कि वो लीक ना हो सकता। लीक हो गई, हैकर के पास हो भी, then hacker can choose what he want to do with it. हैकर अपनी आइडेंटिटी थोड़ा एकदम बताएगा कि मैं कुछ चोरी कर रहा हूँ। धीरे धीरे करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए गुड प्रैक्टिस, इसलिए तो आपको बोलते हैं भी हैं, बैंक्स वाले भी बोलते हैं, कीप चेंजिंग योर पासवर्ड, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन योर पासवर्ड इज ऑलरेडी लीक्ड। हो सकता है आपके बैंक से रोज 50 पैसे चोरी हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि 50 पैसे कहाँ गए। Right? So a lot of things happen, so you have to adopt best practices in terms of password, secrets, tokens, and all those things. Anyway, I think we have spent hell lot of time on just SSH. I think from next time I will have to be more cautious about how we spend our time. But let's move forward quickly. I want to show you the use case of Elastic Beanstalk and how can we use it for our deployment. Okay, so now what I do is, so now we are going into the bit advanced session. By the way, I'm not going to tell any advanced things, just how to use Elastic Beanstalk is what we will see. But anyway, so